expectations. So I would suggest to my juniors that take an active participation in those because it helps to boost your morale and confidence. It helps you to talk to hundreds of people. You are not aware about them in starting. When we come to college, it's all new. We don't know each other, but slowly and gradually we get to know each other, and that's how we make friends. DCIPS is a very great opportunity. You can connect to people. It's a very good way of networking. You can never meet so many people at once after college. And network is something which helps you overall in your complete life. Network is something which helps you to move forward because you don't know where you are gonna be. Maybe it's your senior or junior working somewhere. Maybe they have some requirement. To be honest, most of the jobs are closed with referrals. People out there are looking for the jobs on LinkedIn and various platforms. But in actual, when I'm working, I am asked referral. My friends ask me referral. So it's better to connect with the people. The more you connect with the people, the more opportunities you have. There are various challenges which you will face in life, and every job consists of some or the other challenge. A challenge is never a challenge, it's always an opportunity. Whatever the situation is, how you react to that situation brings something to you. It's either bad or good, that depends on your reaction. So it's a complete pool of opportunities and take advantage of that. The most important thing is we have a lot of cultural activities. I have been surfing through LinkedIn. DCIPS posts a lot of things. We are taking active participation in all the things. There are various opportunities. So connect with people. Whatever is your passion, follow that. Whether it's singing, music, dance, anything. We are here learning management. Management is something which is required in each and every field. Wherever you go in life, wherever you work, more than work, the thing which matters is management, manhandling. That is the only thing which will help you in your complete future. Thank you. Good evening, everyone. Myself Nitin. I'm of batch 21-23. I'm working as a data analyst in PD Polygon Private Limited. It's a chemical manufacturing company. मैं आप लोग से यही कहना चाहूँगा कि इतना सीनियर स्टूडेंट हूँ नहीं, मैं जस्ट अभी पास आउट हुआ हूँ, ज़्यादा कुछ मैंने सीखा नहीं है, बट हाँ, अगर आप कॉलेज में हैं तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ आप लोग बहुत कुछ सीखोगे। एलुमनाई जो टीचर्स हैं आपकी और जो आपके सीनियर्स हैं वो आपको बहुत कुछ सिखाएंगे, बिकॉज आप जितना यहाँ पे सीख सकते हैं, जितनी नॉलेज आप यहाँ पे गेन कर सकते हैं, जब आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाएंगे वहाँ पे आपको कोई नहीं सिखाएगा। वहाँ पे आपको आपका वर्क दे दिया जाएगा और टाइमलाइन दे दी जाएगी और कहा जाएगा कि आप ये वर्क कितने टाइमलाइन में करके दीजिए। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ आप बहुत कुछ सीखोगे, बहुत कुछ आपको गेन करने को मिलेगा। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा, आप जितना सीख सकते हो यहाँ पे आप उतना सीखो। Hello everyone, myself is just Rohan. First of all, I would like to introduce myself to all of you. Okay. My batch is 2018 and 20 और मुझे स्पेशलाइजेशन in मार्केटिंग और विद इंटरनेशनल बिजनेस। बट मैं अपना ये एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ कि जैसे MBA टाइम में मेरी एक सबसे बड़ी वीकनेस थी कि जैसे प्रेजेंटेशन वगैरह मैं दिया करता था उसमें काफ़ी मतलब लैग करता था। इतना मुझे मैं भी जानता हूँ कि काफ़ी बार मैं लैग करा था प्रेजेंटेशन में। उस टाइम मैं चीज़ों को काफ़ी जेन्युइनली लिया करता था कि इसकी इतनी कोई वैल्यू नहीं है। बट जब कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आया तो मुझे पता चला कि इससे हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, क्योंकि हम किसी भी कंपनी में, किसी भी टाइप की कंपनी में जाए, इंटरव्यू में जाते हैं तो जो इंटरव्यूअर होता है वो इसी चीज़ का फ़ायदा उठाता है, हमें कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं कि जल्द से इंटरव्यू जल्दी से क्रैक ना कर पाए। ठीक है, क्योंकि उसके पास मल्टीपल ऑप्शन होते हैं कैंडिडेट्स के लिए, वो हमारे लिए ज़्यादा वेट नहीं कर सकते। बट अगर हमारा कॉन्फिडेंस अच्छा होगा, अगर हमारे पास सारे स्किल्स होंगे, नॉलेज होगी, तो हमें कभी रिजेक्ट कर नहीं सकते। ये है। और उसके बाद मैं दूसरे ये बताना चाहूँगा कि जैसे कि यहाँ पे हम सारी थ्योरेटिकल नॉलेज गेन करते हैं। ठीक है, और जैसे हम कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाते हैं तो वहाँ पे सारी प्रैक्टिकल नॉलेज हमें देखने को मिलती है, हमें चैलेंजेस फेस टू फेस करने होते हैं। ठीक है, तो उसमें काफ़ी डिफरेंस रहता है। बट ये अगर प्रैक्टिकल नॉलेज में ये है कि हमें इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि हम इंटरव्यू क्रैक
प्रैक्टिकल नॉलेज इतनी होनी चाहिए कि जो भी हमें ऑफिस में टास्क मिलता है वो टाइमली मतलब कंप्लीट कर पाएँ। क्योंकि सबसे बड़ी मेन चैलेंज जो होता है सेल्स में कि हमारा जो सोशल नेटवर्क है, नेशनल मार्केट है, वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। क्योंकि कोई भी किसी भी टाइप की कंपनी होती है, दो टाइप से उनको बिजनेस जनरेट करना होता है, या तो अपने थ्रू डेटा प्रोवाइड करवाते हैं, लीड्स प्रोवाइड करवाते हैं। अगर नहीं करवा पाते तो फिर वो हम पे सेल्फ डिपेंडेंट छोड़ देते हैं कि तुम्हें खुद ही बिजनेस डिलीवर करना होगा अपने एंड से। तो उसमें जो तुम्हारा सोशल नेटवर्क होगा और स्ट्रॉन्ग होगा तो उसमें तुम बिजनेस डिलीवर कर पाओगे कंपनी। तो इससे मतलब ये है कि जो तुम्हारी अचीवमेंट है वो फुलफिल हो जाएगी। तो मतलब सेल का सबसे बड़ा पार्ट ये है कि मतलब कहते हैं यू हैव टू मेक ए न्यू फ्रेंड्स ऑन ए डेली बेसिस। ओके, तो मतलब कि तुम्हें एक तरह से डेली बेस पे न्यू लोगों से इंटरेक्ट करना आना चाहिए, इससे तुम्हारे इंटरपर्सनल स्किल्स में भी एनहेंसमेंट होगी। थैंक यू। Hello everyone, I am Ashish and I am from the batch 2017. It's a BBA batch. I am currently working in the hot space. Hot space means the social media space. So I create content, I write scripts, I do anchoring also for some other YouTube channels related to automotive, and I had the automotive channel myself only. So I learned entrepreneurship from this institution. मेरे लिए सबसे खास था एंटरप्रेन्योर बनना, और मैं हमेशा से एक स्टार्टअप रन करना चाहता था। और क्योंकि मेरे नेचर में ही था हमेशा से कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पुट अप कर सकूँ, इस दुनिया में होने वाली हर चीज़ पर सवाल उठा सकूँ, इस दुनिया में हर चीज़ को ज़्यादा बारीकी से समझ सकूँ। जब तक आप बारीकी से ना समझें तब तक आप किसी चीज़ के लिए कुछ क्रिएट नहीं कर सकते, आप एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकते। तो ये क्यूरियोसिटी और अच्छे से नर्चर हुई यहाँ पे, और बहुत मौका मिला सभी टीचर से बहुत सारे बर्निंग सवाल पूछने के लिए। बर्निंग सवाल जो भी आते थे मन में, रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स, रिलेटेड टू मार्केटिंग रिसर्च, रिलेटेड टू पीपल इन जनरल, साइकोलॉजी इन जनरल, सोशियोलॉजी इन जनरल। एंड सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड इसमें मैं यूज़ करूँगा ट्रस्ट। ट्रस्ट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ, इन जनरल, डे टू डे लाइफ भी और आपके बिजनेस के लिए भी। आप जब ट्रस्ट को बहुत इंपॉर्टेंस देना स्टार्ट करेंगे आपको लगेगा कि बाकी चीज़ें आसान होती जा रही हैं। ट्रस्ट बिल्डिंग भी अपने आप में एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड एक्टिविटी है जो कि आप बिजनेसेस में कर सकते हैं, अपने क्लाइंट्स के साथ, अपने बॉसेस के साथ, और इन जनरल सोशल मीडिया पे भी। ये सब चीज़ें सीखने के बाद मैंने अप्लाई किया सोशल मीडिया पे, जिससे कि लोग मुझे देखें। मेरा काम था ऑटोमोटिव वर्ल्ड के बारे में बताना, जो न्यू कार लॉन्चेस या फिर उनके कंपैरिजंस, या फिर ऐसी निटिग्रिटी में डिटेल कंपैरिजन करके दिखाना जो कि शायद एक आम आदमी खुद से ना ढूंढ पाए दो कार्स के बीच में या दो इंडस्ट्रीज के बीच में। जिससे कि धीरे धीरे ट्रस्ट बिल्ड हुआ, लोग मुझे सब्सक्राइब करने लगे और वो चैनल 1,20,000 तक पहुँचा। एंड इसी की वजह से मेरा एक वेबसाइट भी था जिसके अंदर हम लोग ऑटोमोटिव फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स सेल करते थे, रिलेटेड टू लोन्स, कार इंश्योरेंसेस। एंड वहाँ पे भी सेल्स कन्वर्ट होने लगी बिकॉज दे स्टार्टेड ट्रस्टिंग मी। दे स्टार्टेड ट्रस्टिंग मी कि आदमी जो बोल रहा है वो हमारे डे टू डे कंपैरिजन में जब हम गाड़ी खरीदने जा रहे हैं वहाँ पे यूजफुल हो रहा है। तो जब हम ट्रस्ट इस्टेब्लिश कर देते हैं तो आपके लिए बाकी चीज़ें करना बहुत आसान हो जाता है। आपको ज़रूर सोशोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट पे भी बात करना चाहिए। हम सबसे पहले ह्यूमन हैं और हम ह्यूमंस के लिए काम कर रहे हैं। हम कभी कभी इतना मैकेनिकल हो जाते हैं, पढ़ते लिखते साइंस
डे टू डे लाइफ में कि आप अपनी बातें बड़े ध्यान से करें। करंटली एक और चीज़ बताना चाहूँगा, लास्ट ईयर इसकी वजह से मैंने पर्सनल बहुत इंटरेस्ट लिया लॉ में। सो आई स्टार्टेड लॉ जर्नी ऑल्सो इन फैकल्टी ऑफ लॉ दिल्ली यूनिवर्सिटी। सो आई स्टार्टेड डूइंग LLB फ्रॉम देयर ऑल्सो। सो जिसकी वजह से मुझे ये सब जानने को मिला कि कॉन्ट्रैक्ट लॉ मैंने यहाँ पे भी पढ़ा था, कॉन्ट्रैक्ट लॉ जब वहाँ पे पढ़ा तो पता चला कि अभी तक पढ़ाई नहीं कर रहे। और हम डे टू डे लाइफ में इतने सारे चैलेंजेस फेस करते हैं, छोटे मोटे लोग परेशान करते रहते हैं। इंडिया में ऐसा है कि लॉ बहुत स्ट्रॉन्ग तो है रिटन फॉर्म में, कॉन्स्टिट्यूशन भी है बहुत अच्छा, मगर कोई भी उस चीज़ को अच्छे से फॉलो नहीं करता, उसको जानता नहीं है। मैं सबको सजेस्ट करूँगा, मेरा स्ट्रॉन्ग सजेशन होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन को एक बार ज़रूर पढ़ें, पूरे अच्छे तरीके से पढ़ें, सारे फंडामेंटल राइट्स को जानें, और उसके अंदर जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेशन को किस तरीके से सेपरेट किया गया है और एक दूसरे पे चेक्स एंड बैलेंसेस बना के रखे गए हैं, उससे बढ़िया मैनेजमेंट की किताब मुझे तो आज तक नहीं मिली। पर्सनली जब मैंने कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा तब मुझे पता चला कि इससे अच्छा ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट कोई नहीं सिखा सकता। जो कॉन्स्टिट्यूशन जिन्होंने बनाया वो अपने आप में बहुत ही ब्रिलियंट लोग थे, बहुत ही एक्सपीरियंस लोग थे। इसलिए मैं सजेस्ट करूँगा अपनी मैनेजमेंट की किताबों के अलावा एक बार ज़रूर कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ें। और मैं सजेस्ट करूँगा हमारे टीचर्स प्रोफेसर्स को कि आप ज़रूर इसे करिकुलम में चाहे छोटा ही सही इंक्लूड करें। थैंक यू वेरी मच। Now, we kindly request all of you to address the questions which we gathered on our audience. Question 1. How do you balance professional growth with personal development, and what advice would you offer to maintain the balance? प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए अगर बोला जाए तो इट इज़ लाइक कि आप कॉलेज में जितना एक्टिव रहोगे दैट विल ऐड टू योर CV ऑल्सो, बिकॉज आपकी पर्सनालिटी और कम्युनिकेशन स्किल्स उभरेंगे। लाइक मैं भी मतलब आर्मी में भी बोलते हैं कि आपको हमेशा प्लान बी के साथ रेडी रहना चाहिए। तो आई वॉज हैविंग कि मुझे फर्स्ट एम इज टू गो इनटू डिफेंस फोर्सेस। सेकंड वाज दैट कि आई डिड एमबीए ओनली बिकॉज ऑफ द रीजन कि ग्रेजुएशन के बेसिस पे यू डोंट गेट दैट मच गुड जॉब्स। सो स्टिल मतलब अभी भी आई एम डूइंग कोर्सेज लाइक आई एम लर्निंग पावर BI and all the financial courses also, like financial modeling and everything, so that in case there is something like I missed out somewhere, so I should have a option B with myself, and that too in a very good sense, so that I can get a good job. So always be ready with your plan B, so that in any situation, if there is a difficulty, then you can switch off to your next job. Thank you, ma'am. How do you balance professional growth with personal development, and what advice would you offer to maintain that balance? प्रोफेशनल ग्रोथ इज बेसिकली आपको जो एक्सपोजर मिलता है, whatever exposure you get, when once you are out of the college, आपके पास एक एक्सपोजर ये होता है कि कुछ नया सीखने को मिलेगा। What we study here in college is all theoretical. There is bits and pieces which are utilized in our professionalism over there. But when we enter the new era of working, वहाँ पे चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। So it's all complete exposure to you. It is on you how you grab those things. See, जो आपका mentor होगा ना, that is very important person. आपको उससे सीखना भी है, समझना भी है, और आपको चीज़ें करके भी दिखानी है। जितना आप चीज़ों को डेडिकेटली करोगे, उतना वो चीज़ें नोटिस में आएंगी। I also hire people. I see कि उनमें क्या है। स्किल्स से कई बारी हम देखते हैं कि पर्सन कितना ऑनेस्ट है। हम जब कॉलेज में होते हैं, वी हैव नो स्किल्स, बहुत बेसिक स्किल्स होती है एक्सेल की या किसी और टेक्निकल नॉलेज की। वी आर बेसिकली आर रो पीपल जिन्होंने डेवलप करना है। सो व्हाई डू अ पर्सन लुक्स कि आपको क्यों हायर किया जाए, ऐसा क्या है आप में। सो आपकी जो बेसिक स्किल्स है उसके साथ साथ आपका डेडिकेशन, आप जितना इस टाइम पे अपना कैलिबर बढ़ाएंगे। हम कॉलेज जाते हैं, कॉलेज एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए होता है, ऑफिस का टाइम ड्यूरेशन उससे लंबा होता है। सो हम जो अपना बाकी का टाइम है वहाँ पे अपनी स्किल्स डेवलप कर सकते हैं, थोड़ी बहुत जो डिफरेंट हो, व्हाट मेक्स यू डिफरेंट फ्रॉम दिस पीपल, वही चीज़ें